Hello dear students, good morning to everyone. In today's session, we are going to discuss stress block parameters in working stress method. So let's start today's session. To understand the stress block parameters, we have to draw the singly reinforced beam. So let's draw cross section of singly reinforced beam. So this is the cross section of singly reinforced beam. So in this is the width of the beam. This is the total depth of the beam. And this is the effective depth of the beam. So effective depth, it is measured from the upper face of the beam to the CG of reinforcement. So this is the CG of reinforcement. तो इसका CG कहाँ पे एक्ट होगा? In the center of this reinforcement. So it is measured from upper face of the beam to the CG of the reinforcement. So it is the effective depth. It is denoted by small d. And this is the AST. This is the AST. AST means area of steel. And this is the neutral axis. So I will write here neutral axis. तो स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें समझने के लिए हमने सिंगली रेनफोर्स बीम लिया है जिसका विड्थ b है, ओवरऑल डेप्थ d है, कैपिटल D है और इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d है. तो इफेक्टिव डेप्थ कहां से मेजर करते हैं? कॉम्प्रेशन फेज से लेके CG ऑफ द रेनफोर्समेंट. तो ये डिस्टेंस को हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं. सो दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस एंड दिस इज द कॉम्प्रेशन जोन. And this is the tension zone. So I will write here compression zone. तो ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो भी जोन रहेगा तो इट इज द compression zone and below the neutral axis this zone is called as the tension zone. तो जैसे कि ये हमारा ब्रीथ है बीम का और यहाँ पे ये जो AST दिया है तो इसको हमने कंक्रीट सेक्शन से इक्विवेलेंट किया है. तो कंक्रीट सेक्शन से अगर इक्विवेलेंट करते हैं तो इसको मॉड्यूलर रेशियो से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आई विल राइट हियर M into AST. So in working stress method there is a new concept evolved, that is modular ratio. So I will explain about the modular ratio. So this term we have to explain, that is modular ratio. तो मॉड्यूलर रेशियो को समझने के लिए हमें एक कंपोजिट सेक्शन लेना पड़ेगा. जैसे कि ये बीम भी एक कंपोजिट सेक्शन है. कंपोजिट सेक्शन मतलब यहाँ पे कंक्रीट भी है और स्टील रेनफोर्समेंट भी है. तो ये दो मटेरियल का ये सेक्शन है तो इसको हम कंपोजिट सेक्शन कहेंगे. सो इन कंपोजिट सेक्शन if we apply the force then
Equal elongation is produced in the both the material, in concrete and in steel. It means that strain in steel is equal to strain in concrete. तो इनमें जो elongation है, strain है, तो equal produce होगा. So as per Hooke's law, the stress is directly proportional to strain. अगर ये proportionality का साइन हमें निकालना है तो हमें वहां पे कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा. So I will write sigma is equal to, I will put here capital E into E. So E is the modulus of elasticity. So this is the constant. Then E is equal to sigma divided by modulus of elasticity. यहाँ पे देखिए स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट. मतलब जो भी इलोंगेशन स्टील में प्रोड्यूस होने वाला है जब आप कंपोजिट सेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वही स्ट्रेन वही इलोंगेशन आपको कंक्रीट में भी देखने मिलेगा. सो आई विल राइट हियर स्ट्रेस इन स्टील डिवाइड बाय modulus of elasticity of steel is equal to stress in concrete divided by modulus of elasticity of concrete. So sigma S divided by sigma C is equal to ES डिवाइड बाय EC. तो इस टर्म को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया और इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट किया. तो यहाँ पे देखिए सिग्मा S डिवाइड बाय सिग्मा C इज इक्वल टू ES डिवाइड बाय EC. सो आई विल राइट हियर M इज इक्वल टू सिग्मा S डिवाइड बाय सिग्मा C, वेयर M is equal to modulus of steel by modulus of concrete, that is modular ratio. तो IS कोड में हमें मॉडुलर रेशो का फॉर्मूला दिया है, दैट इज M is equal to 280 डिवाइड बाय 3 सिग्मा CBC. तो यहां पे सिग्मा CBC क्या है? सो सिग्मा CBC इज नथिंग बट द परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग. So it is the sigma CBC. तो ये हमें IS कोड में फॉर्मूला दिया है. तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस मॉडुलर रेशो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशो. लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशो. और ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, M इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट, इट इज द शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशो. इट इज द शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशो. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडुलर रेशो, शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशो और लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशो बहुत बार पूछा गया है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दिस टू फॉर्मूला ऑफ मॉडुलर रेशो. तो यहाँ पे
मॉड्यूलर रेशियो से हमने AST को मल्टीप्लाई किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे स्टील एक अलग मटेरियल है और कंक्रीट अलग मटेरियल है। तो यहाँ पे स्टील का जो डेंसिटी रहता है वो अलग है और कंक्रीट का जो डेंसिटी है वो अलग है। इसकी वजह से अगर इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन हमको ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें मॉड्यूलर रेशियो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा x है। सो x इज नथिंग बट द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द कंप्रेशन एज। तो जैसे कि हमें पता है कंक्रीट ये कंप्रेशन में स्ट्रांग रहता है और टेंशन में वीक रहता है। तो इसीलिए इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही हमने कंक्रीट को बनाया है, क्योंकि वो कंक्रीट हमेशा कंप्रेशन लेता है and it is neglected to take the tension. Therefore we provide the steel in the tension side. So below the neutral axis this is the tension zone and above neutral axis it is the compression zone. So one by one I will write here different parameters. So first one, B is equal to width of beam. After that, D, capital D, is nothing but the overall depth of beam. उसके बाद स्मॉल d इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ and it is measured from compression edge to the CG of steel wire. तो उसे हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। आफ्टर दैट AST, so AST is nothing but the cross sectional area of steel in tension. उसके बाद x है, x is nothing but the depth of neutral axis compression edge. तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन एज ये है। तो यहाँ से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक जो भी डिस्टेंस है उसको हम x कंसिडर करेंगे। तो x इज नथिंग बट द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस बिलो द कंप्रेशन एज। और यहाँ पे ये m जो दिया है, सो इट इज द मॉड्यूलर रेशियो। सो दिस इज अवर स्टेट डायग्राम। And this is the equivalent stress diagram. तो यहाँ पे देखिए EC is the strain in concrete, strain produced in the concrete, and ES is the strain produced in the steel. तो ये जो स्ट्रेन डायग्राम है, तो ये कहाँ तक रहेगा? ये जो इस इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया का जो भी CG है, तो वहां तक ही ये हमें ड्रॉ करना पड़ता है। सिमिलरली इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम,
सो यहाँ पे ये सिग्मा सीबीसी है, मतलब परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग, एंड दिस इज द सिग्मा एस टी, मतलब स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द स्टील। तो इसको हम इक्विवेलेंट में लेना है तो इसको सिग्मा एस टी डिवाइड बाय एम लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो वो कहाँ पे एक्ट होगा? सो दिस इज द कॉम्प्रेशन एंड दिस इज द टेंशन। So this compression will act at a distance of x by 3। तो ये compression कहाँ पे एक्ट करेगा? तो ये जैसे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के बेस से जो भी हाइट है उसके हाइट के 1/3 एक्ट करेगा ये compression। सो इट विल एक्ट एट द x by 3। तो इस ट्रायंगल का हाइट कितना है? x, सो x by 3। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है कॉम्प्रेशन फोर्स से लेके टेंशन फोर्स तक, इस डिस्टेंस को हम लीवर आर्म कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय z। सो आई विल राइट हियर EC is equal to strain in concrete, ES is equal to strain in steel. After that, sigma CBC. So sigma CBC is equal to permissible compressive stress in concrete in bending, and sigma ST is equal to permissible tensile stress in steel. After that, Z is nothing but the lever arm. So lever arm is nothing but the distance between total compressive force and टेंसाइल फोर्स, तो उसको हम लीवर आर्म कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स। आफ्टर दैट C is equal to the total compressive force and T is the tensile force. So these are the stress block parameters.